Uday. This is a mega protest, Divya. You can see these are some of the Congress workers, but outside the Congress headquarters there are lot more Congress workers, and the security is very, very high here. There are Central Armed Police Forces, Rapid Action Force, Delhi Police, and this is just one of the example of how confrontation take place at the protest sites, because police usually barricades most of the main routes to in fact regulate traffic, and while the confrontation are just beginning, it is likely to escalate in the coming day as far as the protest is concerned. We have tried to speak to the police officials, but they are not commenting as of now as far as the barricading of roads are concerned, and whether when the Congress workers plan when they plan to go to the Prime Minister's residence or other places in the national capital, whether they will be allowed or not, because the police has clearly said that no permission will be given for Congress workers to actually carry on with this protest. Right, so Akshay joining us from the Congress headquarters. Akshay, the plan is for these Congress leaders to actually go towards the President's house first, and that is the plan. What's on the agenda? What are they planning for the day? Well, the plan remains the same, going to, as you are mentioning, the President's house and the Prime Minister's residence as well, and that exactly is the reason that the security there has been beefed up. However, it is unlikely that the police will be allowing anyone to move from here to anywhere near the VIP areas, and that's the reason. These Congress workers are stopped here as well. Now, when Section 144 is in effect, gathering of more than 4 people is not allowed, and how the police in fact plans to regulate the entire protest, whether the protest will only be allowed inside AICC or not, that remains a big question as far as the security arrangements are concerned. प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। जब से गडकरी जी को हटाया गया है, तब से चारों ओर मोदी जी के जो वक्त नहीं है, वो लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लो आप। लिख ले, लेकिन राह तो साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, राह साफ करने में लगे रहो, जो भी कुछ है इनकी पूरी राह साफ हो जाएगी। 2000 मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इतना मैं गारंटी से कहता हूं। तारीख में सबसे कम उनकी लोकप्रियता है। 5% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते हैं। भक्तों को छोड़ दें तो करोड़ों रुपए एक दिन में अपने लिए खर्च करता हो, प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखाने के लिए विज्ञापन में एक दिन में खर्च किए जाते हैं, उसे महंगाई कहां से नजर आएगी? उसे तो सब कुछ हरा ही हरा बढ़िया ही नजर आवेगा ना। सभी लोग मोदी जी को कोस रहे हैं। इन दिनों यही विषय चर्चा में है कि मोदी जी रहेंगे या नहीं। इसी बीच एडवोकेट भानु प्रताप ने साफ शब्दों में कहा कि 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे, उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। 24 में भी राह आसान हो जाएगी इसी तरह। 24 में देखेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। 24 में 24 में उखाड़ के फेंकने की बात। बिल्कुल। देश में 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, वहां मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो आप उन पर बात क्यों नहीं करते हो? अब उनकी हिम्मत तो देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, एक पीएम को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। उन्होंने अपने तर्क में कहा कि जिस देश में 22 लाख लोगों को रोजगार देना जरूरी है, मोदी जी दे रहे हैं केवल 7 लाख, तो मोदी जी इस विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने प्रश्न उठाया। भानु प्रताप जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा लाल किला से झूठ बोलते हैं और बोल भी रहे हैं। जी हाँ, डंके की चोट पर कहा उन्होंने। अब यदि एडवोकेट भानु प्रताप जैसा कह रहे हैं, उसे हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो ऐसे में हम ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि अब परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है, और हम सब जानते हैं कि यह लहर बिहार से शुरू हो गई है। अब यदि यह कहें कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ अभियान शुरू हो गया है, तो शायद गलत नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी हटाओ यह मुहिम
रंग लाएगी या नहीं, या टाएं टाएं फिस होकर रह जाएगी। काँव काँव कहते हुए कौवे जैसे उड़कर आते वैसे ये भी खत्म हो जाएगी। यह मुहिम चलेगी या नहीं चलेगी? तो आप भी वोटर हैं, देश के वोटर हैं, आप पर सारा दारोमदार है। आप ही बताएं कि क्या होगा। कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर दें। ये बातें भानु प्रताप ने DS न्यूज चैनल को कहा है। जरा सुनिए इस वीडियो को। आज से रोजगार आंदोलन भी हो रहा है दिल्ली में। मतलब नहीं है, लाल किला से कहा है प्रधानमंत्री। झूठ बोल रहे हैं ना, लाल किले से कोई आज ही नया झूठ बोला प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने हर बार लाल किले से झूठ बोला कि हर एक गांव को गोद लेना है। ये तमाम चीजें गूंज रही हैं और एक तरफ 25 साल बाद से हम विकसित देश कहलाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं संकल्प लीजिए। प्रधानमंत्री की बात और बराबर है, कोई फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत है, लगातार झूठ बोलते हैं और ऐसी कल भी झूठ बोला है। खोखला भाषण है और कुछ है नहीं, सच्चाई से बहुत दूर है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, कथनी और करनी में। देखिए, कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और रिपोर्ट आती है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में रोजगार मांगा, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, कितने स्मार्ट सिटी बने आपको पता है? क्या इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया? नहीं। किसानों की आय दुगनी हो गई? नहीं। हर किसी को 2022 में पक्का घर मिल गया? नहीं। प्रणाम। आज उदय